ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳ ଚା ପିଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳର ପ୍ରୀତିଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାବିଲି ସକାଳେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହି ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେଇ ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ମୋର ମନକୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ଧୋଲେଇ ପକାଏ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ରେଡିଓ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡିଓ ଏବେ ବି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ କେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଲାଇନ ପଳେଇଲା, କି କୋଉଠି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେତେବେଳେ ରହିଛି ରେଡିଓ ସେବା ରହିଛି ଏବଂ ରେଡିଓର ସେବା ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ ଚାଲିଛି, ଆକାଶବାଣୀ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ତେଣୁ ଆକାଶବାଣୀ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। କେତେ ଯେ ଉପସ୍ଥାପକ, କେତେ ଯେ ଆନାଉନ୍ସର, କେତେ ଯେ କଳାକାର ସବୁ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲେଣି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମୋ ମନରେ ରମନ୍ଥନ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ବେଳରେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ମୋ ତଳ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେ କି ଆମର ରବାଇନା ବେଲେ ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ ରବି ଶତପଥୀ, ନ୍ୟୁଜ ପଢନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ଅନିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନନ୍ଦ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳର ବେଳ ଅତି ଖୁସିରେ କଟୁଥିଲା, ସେଇବେଳ ଅତି ନିଆରା ଥିଲା। କେତେ ଡ୍ରାମା, କେତେ ଗୀତ, କେତେ ରୂପକ, କେତେ କଣ ଏଇ ଆକାଶବାଣୀ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁ ସମୟ କଟେଇଛୁ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଯିଏ ବଡ ଭାଇ ଥିଲେ, ମିତୁ ଭାଇ, ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ 12:30 ସେଟା ବାଜୁଥିଲା, ସେଟା ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ଉପସ୍ଥାପନ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଆକାଶବାଣୀ କଥା କାହିଁକି ମନେ ପଡିଗଲା ନା, କାଲି ପ୍ରମେୟ ପଢୁ ପଢୁ ଦେଖିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱ ରେଡିଓ ଦିବସ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷଣା। ଯାହା ଭଉଣୀ କି ବହୁତ ବହୁତ ମୋ ତରଫରୁ ବଧେଇ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ଆର୍ଟିକଲ ପଢିଲି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଆର୍ଟିକଲ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲେଖା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି କଣ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ ପ୍ରମେୟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ପଢିପାରିବେ। 9/15 ଯୋଉ ରବିବାର ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଯେ ବିସ୍ତୃତ ବେତାର, ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ତ ଲୋକ ହସିବେ ରେଡିଓ କହିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ରେଡିଓ ଦିବସ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ରେଡିଓ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ତାଳରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନ, ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛି। ସମୟର ନିରନ୍ତର ଗତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ପକେଇବାକୁ ହୁଏ, ଯାହା ସମୟ ସହ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ଦିନ ଥିଲା କ୍ରିକେଟ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ସବୁ ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ରେଡିଓ। ଏପରିକି ସିନେମା ନାଟକର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ରେଡିଓ ଦ୍ୱାରା। ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ରୂପରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ରେଡିଓ। କେବଳ ଖବର ନୁହଁ, କେତେକଙ୍କ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଥିଲା ରେଡିଓ ସହ। ଟେଲିଭିଜନ, ମୋବାଇଲ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ରେଡିଓ ପ୍ରାୟ ସ୍ମୃତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି।
तथापि कहार रेडियो संग्रह करिवार शौक रेडियो को जीवंत करी रखिछि तो किए पर पीढ़ी पर संग्रह करी रखिछि एई बेतार यंत्र को जे कि आमे काम करथलु वर्तमान बेतार को आमे केबे भूली परिबुनी जीवन थिबा पर्यंत। विश्व रेडियो दिवस कौन केमती पालन करागला से वर्ष लिखिं प्रति वर्ष फेब्रुआरी मास 13 तारिख में पालित हुए विश्व रेडियो दिवस 2011 मसीह यूनेस्को 36तम अधिवेशन में आयोजित एक साधारण सम्मेलन में प्रतिवर्ष फेब्रुआरी 13 तारिख को विश्व रेडियो दिवस रूप में पालन कर प्रस्ताव दी जाता जहाँ 2012 मसीह यूनेस्को साधारण परिषद द्वारा गृहीत होता। जोगाजोग एक प्रमुख माध्यम भाव में रेडियो अवदान अविस्मरणीय। जोगाजोग क्षेत्र में यह शब्द तरंगर गुरुत्व प्रतिपादित करता है। रेडियो प्रसारण संघ व्यवसायी रेडियो कर्मचारी एपरिक श्रोता मानू रेडियो गुरुत्व संबंध में सचेतन कराइबा यूनेस्को तरफ विश्व रेडियो दिवस पालन करा जाए। सेमती बहुत कथा से लिखिं उद्भावन पछर कहानी केमती उद्भावन केमती है चाहिए से आप डिटेल से पेपर टा आप पढ़ी पारे बहुत भल लगे। बहुत जिनस से लिखिं से लिखिं कटक रेडियो मैन अच्छा काली प्रसाद से आपनकर कटक जिला किशन नगर रे से बोध जाइए से सब संग्रह कर रखिंट रेडियो मैन कहते प्रीति रही रेडियो प्रति एबे डिजिटल जुगर एनालॉग दुकान मध्य रही सब रेडियो संपर्कित कथा एबे भी जरूरी कालीन सेवारे हाम रेडियो से हाम रेडियो विषय लिखिं एबे समाज रे रेडियो आवश्यकता रही आधुनिक पीढ़ी यह शुणी थटा तमसा उड़े दे पारती किंतु 5G अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा थाउ थाउ किए बा कहीं खोज रेडियो को किंतु जरूरीकालीन परिस्थिति जितेबाला लैंडलाइन अचल हो जाए मोबाइल नेटवर्क काम करे नहीं और जोगाजोग संचार अन्य माध्यम सब बंद हो जाए सेतेबेले मने पड़े हाम रेडियो। कौन प्राकृतिक विपर्य हो कि दुर्घटना कि मानवकृत विपर्य सबुरे जोगाजोग एकमात्र माध्यम सही हाम रेडियो। हाम रेडियो जरिए संपर्क स्थापन करिबारे साहाय्य करती स्वतंत्र प्रशिक्षण पाइथिबा लाइसेंस प्राप्त हाम रेडियो संचालक। प्राकृतिक विपर्य समय उद्धारकारी दल मेडिकल टीम निकट में हाम रेडियो ऑपरेटर तथ्य पहुंचाई था। हाम रेडियो ऑपरेटर को अन्य कौन संस्था पर निर्भर करने को पड़े ना। निज रेडियो जरिए जेकोसी स्थान सूचना आदान प्रदान कर स्वतंत्रता थाए पाखे मात्र एमाने लाइसेंस प्राप्त होइतिबा एकांत जरूरी। भारत में बर्तमान 22,000 ऊर्ध लाइसेंस प्राप्त हाम रेडियो संस्था रही। हाम रेडियो पर सरकार नियंत्रण रही। समस्त हाम रेडियो ऑपरेटर को एक विशेष कोड दि जाता है जहाँ रेडियो जरिए संपर्क स्थापन कर समय ऑपरेटर परिचय भली काम करता है। विशेष कोड को कॉल साइन बोली कहुए। प्रत्येक हाम रेडियो ऑपरेटर मान को केंद्र सरकार को जोगाजोग मंत्रालय लाइसेंस नेवा को होता है। जहाँ हाम रेडियो विषय आपंकर ज्ञान थी कि नही किंतु ये जो अनन्या अन्वेषणा भौणी जोटा लिखिं बहुत किसी एटा उपादेय रही। रेडियो निश्चय उपकारिता रही एवं रेडियो को आप केबे छाड़देवे रेडियो टाक मन रखि थे माने मो तरफ कहूँ क्या मुझे रेडियो प्रेमी जो रेडियो काम करी। रोचक तथ्य किसी आप जानी था किसी रेडियो विषय रोचक तथ्य प्रथम व्यावसायिक रेडियो प्रसारण 1922 रे करा जायतिला। क्वींसबोरो कॉर्पोरेशन नामक घरोई कंपनी द्वारा प्रथम यह माध्यम निज कंपनी संबंधी विज्ञापन प्रसारण करा जायतिला। आलोक बेगर गति करे रेडियो तरंग शब्द तरंग परी रेडियो तरंग वायु मध्यम गति करते गोटे स्थान अन्य स्थान को पहुंचवाकू यह अन्य कौन माध्यम आवश्यकता हुए नहीं। मात्र यह वायु मध्य शब्द तरंग परी क्षीण गति न जाई आलोक परी क्षिप्र गति जाए। गण जोगाजोग रेडियो प्रथम इलेक्ट्रोनिक्स यंत्र रूपे व्यवहृत होता। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग विश्वर सर्वपुरातन इलेक्ट्रोनिक्स गण जोगाजोग
रेडियो माध्यम 2000 रु अधिक भाषा प्रसारित हेउथिबारु नजीर रही विश्व में कहुआ प्राय समस्त भाषा रेडियो रे प्रसारित हो सारी। प्रथम रेडियो एफएम स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग 1940 मसीह होता जोटा कि आपण एफएम बर्तमान शुणुन चाहिदा रही गाड़ी फाड़ी गला बेले एफएम भी शुणती आउ किछिटा श्रोता मध्य रही एफएम रेडियो तथापि एबे तो यूट्यूब रो जुग हो गलानी एगुडाक कहीं मन दौना रेडियो रे प्रथम डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग यूके रे 1995 मसीह आरंभ होता यह डीएबी रेडियो मध्य कहुला। डीएबी रेडियो आविष्कार होगा पूर्व व्यवहारकारी माने अनलॉग सिग्नल व्यवहार करी रेडियो रे सुनिथिले जहाद्वारा साउंड क्वालिटी रे वृद्धि होगा सह अधिक सिग्नल स्टेशन मध्य उपलब्ध होता। यार व्यवहार एनालॉग रेडियो तुलन में सहज थिला। रेडियो एक्ट तैयारी होगा टाइटानिक बुड़िया को पड़ता। कम्युनिटी रेडियो हूँ एक स्थानीय रेडियो सेवा जहाँ मालिकाना थिवा संस्थार इच्छा मुताबक प्रसारित होता है। यह व्यावसायिक उद्देश्य किंबा घरोई संस्थार निजस्व रेडियो नेटवर्क भाव में काम करते। उत्तर प्रदेश राम सिंह बौद्ध 1257 रेडियो संग्रह करी ग्रीनिज रेकर्ड कर सबुठार महंगा रेडियो भाव में 1933 मसीह एक रेडियो लंडन में $38,047 नीलाम होता। जाओ शेष से अनन्या अन्वेषणा भौणी को मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन आपंकर लेखा पाए रोजी सांग माने जदि आपण को ए विषय किसी ज्ञान आहरण करते कि जाना पाई भल लगी था निश्चय लाइक शेयर कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करने को जमा भूलि। नमस्कार पुणी न्यू वीडियो रे आपण सहित देखा।